Today's video is about bases. So bases are those chemicals which has bitter taste and which change the color of the red litmus to blue. Some common bases, examples of some common bases, you must remember the names as well as chemical formula are sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, ammonium hydroxide NH4OH, calcium hydroxide or slaked lime CaOH twice. So mostly you see bases are hydroxides of metals. Only ammonium hydroxide is an exception. It's a hydroxide of non-metal. Still, it's a base. Sodium carbonate, which is a salt but basic salt. Sodium hydrogen carbonate, also a salt but a basic salt. So these are all bases. Properties of bases. They are these are the physical properties. So they are bitter in taste. They are soapy to touch. All the soaps have bases in them. They turn red litmus blue, methyl orange from orange to yellow, and phenolphthalein from colorless to pink. They conduct electricity because they contain ions. Chemical properties. Okay, this is a important can say information provided here. Alkalis react with oils, which is naturally there in our skin, to form soap. Our skin contains oil in the form of fats, and therefore, when we touch caustic soda or alkali, it reacts with the oil present in our skin to form soap. This gives the feeling of soapy touch. So, number one chemical property of bases, they react with metals to produce hydrogen gas. Sodium hydroxide reacts with zinc to produce a salt which is known as a double salt, sodium zincate. Plus, it produces hydrogen gas. So they have performed an activity over here. They have attached a hard test tube with a rubber cork, and they places a few zinc granules in the test tube, just like how we reacted acid with metal. Same way we react bases with metal, and we add a solution of sodium hydroxide to this zinc, and you will see that if you warm the content, you will see some gases are coming up through bubbles, and if you collect the gas and test it, you will find that the gas is hydrogen, right? So bases also react with metals to liberate hydrogen gas. There is one more example. Aluminium reacts with sodium hydroxide to give sodium aluminate plus hydrogen. So sodium hydroxide cannot be kept in aluminum containers. This question can be asked to you. Why sodium hydroxide cannot be kept in aluminum containers? Because it reacts with metals. But bases do not react with all metals. Only it reacts with reactive metals. Reaction with acids. So you always remember acids react with base to form salt and water neutralization reaction. Similarly, bases also react with acid to form salt and water. It's one and the same thing, neutralization reaction. Here they have given the examples which we have already studied in the section of neutralization reaction of acids. It's the same thing. Reaction of bases with non-metallic oxides. So whenever bases react with non-metallic oxide, for example, sodium hydroxide reacts with carbon dioxide, it forms sodium carbonate plus water. It forms a salt and water. So we've seen that when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky. Calcium hydroxide is a basic solution and it reacts with carbon dioxide to give salt and water. Similarly, sodium hydroxide is a basic solution. Carbon dioxide is an acidic gas. When they react, they form salt and water. So the reaction is similar to that between a base and an acid. So we conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. So here when they say non-metallic oxide, please remember non-metallic oxide is a carbon dioxide in this case. Similarly, carbon dioxide, sulfur, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, N2O. These all non-metallic oxides are acidic in nature. They are all acidic in nature. Okay, because when they react with base, they form salt and water. Behavior of bases in water. See, some bases
are water soluble. So these bases, when they are dissolved in water, these water soluble bases are known as alkali. Water soluble bases are known as alkalis. So these alkalis, when dissolved in water, they get dissociated into two types of ions. One is a metallic ion. Metallic ion, because metallic ion is a part of a base, and other is a non-metallic ion. And that non-metallic ion is mostly a hydroxyl ion. Hydroxyl or hydroxide. Okay, its symbol is OH minus. So whenever bases are dissolved in water, they split, they dissociate into metallic and non-metallic ion, or metallic and hydroxyl or hydroxide ion. Okay, so what is the Arrhenius concept of bases? Arrhenius also gave a concept about acids, that all acids, they contain hydrogen ions, and these hydrogen ions, they latch on to the water molecule and they form hydronium ions. So whenever bases are dissolved in water, they form hydronium ions, and these hydronium ions are responsible for the behavior of bases. These hydronium ions are, I'm sorry, they are responsible for the behavior of acids, not bases. So in bases also there must be some kind of ions which are responsible for their behavior. So potassium hydroxide, when dissolved in water, it gives potassium ions plus hydroxyl ions. So you see, in every case there is a common type of ion which is formed when bases are dissolved in water. They dissociate and they form hydroxyl ion, hydroxyl. So these hydroxyl ion, they are responsible for the behavior of bases. Bases give OH minus ions. You know why bases turns red litmus blue? Because of the hydroxyl ions. Why acids turn blue litmus red? Because of hydronium ion. These. So that's the characteristics difference between the acids and bases. Classification of bases: strong bases and weak bases. See, the bases which completely ionize to give a high concentration of hydroxide ions are called strong bases. So strong bases completely ionize in water, and they give, you can say, they give a high concentration of hydroxyl ion or hydroxide ions in water. Weak bases, they ionize only to a small extent, in water. But they give hydroxide ions, but the concentration of hydroxide ion, the number of hydroxide ions are very, very less. So weak bases are those bases which ionize partially to give low concentration of hydroxide ions. Some examples of weak and strong bases are given here. Strong bases are very famous, very common: sodium hydroxide, potassium hydroxide. Weak bases are ammonium hydroxide, remember them, calcium hydroxide, slaked lime is a weak base, magnesium hydroxide, and copper hydroxide. These are all weak bases. Bases and alkalis. Remember, what is the difference between base and alkali? See, alkalis are special bases which are water soluble. So some bases, they dissolve in water, they form basic solution or alkaline solution. Those are alkalis. For example, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. They are alkalis. Why? Because they dissolve in water to give OH minus ions. But bases, they do not dissolve. All bases, they do not dissolve in water. Only alkalis dissolve in water. So remember that you might come across some basic substances, but all of them are not alkalis, because all of them are not water soluble. So that means all alkalis are bases, because all alkalis show basic properties, but all bases are not alkalis, because bases show basic properties, but they are not soluble in water. So all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Remember this. The soluble bases are much more common than insoluble bases, because most of the chemical reaction takes place in aqueous solution form. So whenever you want a chemical reaction to take place, you want the reactants in the solution form. So that way the reaction will occur more faster.
That's why the bases which we use in chemistry, they are almost all the alkalis, not solid bases. Uses of bases. They are used in manufacture of soap, paper, synthetic fiber, petrol refining, laboratory reagent, sodium hydroxide. The uses of sodium hydroxide I just listed. Potassium hydroxide is used in alkaline batteries and soft soap. Calcium hydroxide is used in bleaching powder, softening hard water, and neutralizing acids in the soil. So bleaching powder is a special powder which basically decolorizes some material. It has got chlorine and it is made from calcium hydroxide. So they are used to decolorize, to remove stains or to whiten certain materials. Okay. Hard water. What is hard water? Hard water is a uh, kind of water which is basically groundwater available in rural parts of our country. So whenever you go to your native place in your village, you will find hard water over there. So what happens with this hard water? So you'll observe that whenever you use hard water for your activities like washing clothes, washing utensils, or bathing, they will not allow soap to be as effective as it is with your normal tap water, because the action of soap is killed by hard water. It has got some dissolved minerals which kills the action of soap. So you will feel that even after washing clothes or utensils or even after bathing in hard water, you don't feel clean. You don't feel the things have got clean because soap could not clean the articles properly. That's why hard water is basically not suitable for these processes like cleaning, bathing. So that's why we have to convert hard water from hard water. We have to convert it into soft water and then use it. So how to do that? That maybe in the later part we'll study. Magnesium hydroxide is used as an antacid to neutralize excess of acid in stomach and cure indigestion. So you might have had this medicine called it's an antacid basically. Um, it's a liquid, a thick white or yeah thick whitish or pinkish liquid जिसको तुम पीते हो, थोड़ा मिंटी होता है उसका टेस्ट, और वो इंडाइजेशन या फिर जब स्टमक में एसिडिटी हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड पीते हैं. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मेडिसिन because I don't suffer from acidity so often. Okay, ammonium hydroxide. It is used for removing grease stains from clothes in laundries. So these are the uses of bases. Okay, sodium carbonate used as cleansing agent in washing soda and for softening hard water. See, this is the substance which you add to hard water and it becomes soft water. Then sodium hydrogen carbonate, it is used as baking soda in cooking food. Baking soda is used in baking products, so cake and pastries and uh, I don't know what else you bake. So you use baking soda there. And for making baking powder as an antacid to cure indigestion and in soda acid fire extinguisher. So you know Eno uses sodium hydrogen carbonate. So when you put Eno in water, that sodium hydrogen carbonate, which is a base, it reacts with the citric acid which is present in Eno. So Eno का जो flavor होता है वो lime flavor आता है generally. तो उसमें वो सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्राई पाउडर के फॉर्म में मिक्स्ड रहता है. जैसे ही उसको पानी में डालते हो, वाटर में बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल सोल्यूशन बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इंडाइजेशन को क्लियर करता है, इसलिए जब भी हमें इंडाइजेशन होता है हम इनो पीते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस. न्यूट्रलाइजेशन के बारे में वापस वो लोग ने बताया है. सी, न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या है? जो एसिड के अंदर का हाइड्रोजन आयन है और बेस के अंदर का हाइड्रोक्साइड आयन है, वो दोनों मिक्स होके वाटर बनाते हैं और साथ में हमें सॉल्ट भी मिलता है. सो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेसेस दोनों की प्रॉपर्टी को किल कर देता है वो. ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखो क्या है. एक तो वो एसिडिटी वाला एप्लीकेशन है. एंटासिड टैबलेट हम खाते हैं, डाइजीन या ऐसे जो हम लोग दवाई लेते हैं फॉर एसिडिटी.
it neutralizes the excess of acid present in our you can say in our stomach, okay, or you can say esophagus, और जहाँ भी तुम्हारा digestive tract है वहाँ पे acid को neutralize करता है. देन कोल्ड मिल्क से भी हम लोग, कोल्ड मिल्क अल्कलाइन होता है ये लोग बोल रहे हैं, और वो भी न्यूट्रलाइज करता है एसिड को स्टमक में. बी स्टिंग जिसमें फॉर्मिक एसिड होता है, इट इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग सोप विच कंटेन्स अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो इट कैन बी ऑल्सो बी न्यूट्रलाइज विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो बेकिंग सोडा लगाओगे ना बी स्टिंग के ऊपर तो तुम्हें जलेगा नहीं, मतलब वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बी स्टिंग तुम्हारे बॉडी में एसिड डाल देता है, तुम्हें फिर वो जलता है बहुत और पेन भी होता है. सो उसके ऊपर अगर बेस लगाओगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, जहाँ पे हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो एसिडिक सॉइल में सारे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते. जैसे कि अगर तुम्हें ऑरेंज ग्रो करना है तो एसिडिक सॉइल में ग्रो होगा ही नहीं. राइस के लिए एसिडिक सॉइल बेस्ट है. तो ऑरेंज अगर ग्रो करना है एसिडिक सॉइल में तो तुम्हें पहले उसको बेसिक बनाना पड़ेगा, तो उस पर स्लेकेड लाइम डालते हैं फार्मर्स, फिर लाइमस्टोन, तो वो सॉइल न्यूट्रलाइज होके नॉर्मल बन जाती है, फिर उसमें जो भी तुम्हें ग्रो करना है कर सकते हो. Some power stations burn fossil fuel to give off acidic sulfur dioxide gas, which causes acid rain. Therefore, power stations use lime or limestone to neutralize gases before they leave the chimneys. पावर स्टेशन में कोल को बर्न करते हैं, और कोल के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जिससे एसिड रेन आता है. तो एसिड रेन को रोकने के लिए, नहीं होने के लिए, वो जो चिमनीज है वहां पे लाइमस्टोन यूज करते हैं पावर स्टेशन, जिससे जो गैसेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेसशिप्स एंड सबमरीन्स यूज alkali lithium hydroxide to neutralize the harmful effects of carbon dioxide exhaled. Baking powder helps cake mixture to rise. This is because it contains sodium hydrogen carbonate and weak acid. When water is added to this reaction, to these two react, and it produces uh, uh, hydrogen carbonate and an acid. The carbon dioxide produced gets trapped in the cake mixture and make it rise. तो हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर में केक बनाने में भी यूज होता है और एंटासिड में भी यूज होता है, क्योंकि वो जैसे ही उसको पानी में मिक्स करोगे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वो केक को फ्लफी बनाएगा. बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है, प्लीज देख लो ये. सो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या है? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन एसिड produces as which it produces as H plus ions when dissolved in water or in its aqueous solution is called basicity of acid. सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा तो बेसिसिटी का मतलब किसी भी एसिड में कितने हाइड्रोजन है वो उसकी बेसिसिटी है. HCl में कितने हाइड्रोजन है? 1, तो उसकी बेसिसिटी 1 है. HNO3 की बेसिसिटी क्या है? 1. H2SO4 की बेसिसिटी क्या है? उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, तो उसकी बेसिसिटी 2 है. ठीक है, H2CO3 की बेसिसिटी 2 है, मतलब जिसमें जितने हाइड्रोजन उतनी उसकी बेसिसिटी. H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है? ठीक है, 3 है. तो नाउ यू नो व्हाट इज बेसिसिटी. जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी होगी. अच्छा, अभी तुम देखोगे कि CH3COOH, इसकी बेसिसिटी कितनी है? अब तुम बोलोगे सर इसमें तो 4 है हाइड्रोजन तो इसकी बेसिसिटी 4 है. नहीं, इसकी 4 नहीं है बेसिसिटी. इसको अगर तुम देखोगे स्प्लिट करके तो एक ही हाइड्रोजन आयन निकलता है. बाकी जो CH3COO है वो एक अलग ही आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, जो जिसका जो H3 है वो कार्बन के साथ कंबाइंड है. तो हाइड्रोजन आयन इसमें सिर्फ एक है, तो इसकी बेसिसिटी 1 है. एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 1 है, रिमेंबर दिस. एसिडिटी ऑफ बेस क्या है? एसिडिटी ऑफ बेस मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ एन बेस. तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1. बेसिसिटी 2. बेसिसिटी 3. सिंपल, जितने हाइड्रोक्साइड आयन उसकी बेसिसिटी उतनी. गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर एग्जांपल पूछो तो मेरा फेवरेट है HCl और H2SO4. स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH and KOH. करेक्ट.
चलो, नेम 3 एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। तो एक तो है सिट्रिक एसिड जो फ्रूट्स में होता है, एक है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है तुम्हारा एप्पल में, लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क में, और फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग में। और भी है, बहुत सारे हैं, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल दिए। एसिटिक एसिड भी है विनेगर में। स्टूडेंट ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल। मार्बल क्या होता है? मार्बल क्या होता है? मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला। द इवॉल्व गैस वॉज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व इन लाइम वाटर? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही HCl में हम डालेंगे क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होगा। हमने देखा था ना, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द इवॉल्व गैस वॉज पास थ्रू लाइम वाटर, जैसे ही CO2 को लाइम वाटर से पास करेंगे क्या होगा? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, इट विल टर्न मिल्की। क्या बोला है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंजेस ऑब्जर्व। तो पहला तो चेंज है CaCO3 प्लस HCl गिव्स क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, CO2 प्लस H2O प्लस कैल्शियम कार्बोनेट है ना अपने पास। CO2 तो होगा ही, H2O भी होगा, तो CO2 और H2O लिख देते हैं ना पहले। तो हाइड्रोजन H2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, यस बैलेंस्ड है, प्लस वाटर। ये इसका पहला केमिकल इक्वेशन है जो मुझे सही लग रहा है। और दूसरा लाइम वाटर, मतलब CaOH ट्वाइस, स्लेकेट लाइम या लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? ये बनाता है फिर से कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2, CaOH ट्वाइस है ना ये, तो 2H2O, 2H2O बिल्कुल सही है, मुझे सही लग रहा है ये। लेट्स चेक। CaCO3 प्लस HCl गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, बिल्कुल सही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव CaCO3 प्लस H2O, 2H2O नहीं है, H2O है। CaOH ट्वाइस प्लस CaOH ट्वाइस है ना, CaOH ट्वाइस ही तो लिखा था पहले यार, क्या CaOH ट्वाइस ही लिखा था पहले मैंने ब्रैकेट में। इसको हटाओ, 2H2O की जरूरत नहीं। सही है, बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक्चुअली ऑक्सीजन 4 है, करेक्ट है, और एक कार्बन, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अच्छा, ये नहीं पता था यार। गिव वन रीजन, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये तो एडल्ट्रेशन हो गया मिल्क का। I don't know why they add baking soda. Let's see. Baking soda is alkaline in nature. It neutralizes the lactic acid present in the milk and hence prevents its spoilage. Oh, very clever. Tap water conducts electricity, whereas distilled water does not. Because tap water contains dissolved impurities. Those dissolved impurities furnish ions. Which ions? तो टैप वाटर में से जो आयंस बनेंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी टाइप के आयंस हो सकते हैं, बट डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी डिजॉल्व इंप्यूरिटी नहीं होती, वो आयंस नहीं बनाता। इसके लिए टैप वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स व्हिच आयनाइज इन वाटर एंड हेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन dissolved salts and minerals. It is a covalent compound and hence does not conduct electricity. Dry hydrogen chloride gas does not turn blue litmus red, whereas hydrochloric acid does. Give one reason. So dry hydrogen chloride does not have hydronium ions. That's why
it does not turn blue litmus red, because in the absence of hydronium ion, acids do not exhibit their acidic nature. But hydrochloric acid in dilute form, in aqueous solution form, contains hydronium ions which turns blue litmus red. इसमें वो लोग ने हाइड्रोनियम नहीं H प्लस आयंस लिखा है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो आंसर बाकी पूरा सेम है। तुम हाइड्रोनियम आयन लिखोगे H3O प्लस तो भी चलेगा। Name the gas evolved when dilute HCl reacts with sodium hydrogen carbonate. How is it recognized? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक कार्बोनेट ही है। जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। और ये गैस को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? जब इसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो इट टर्न्स इट मिल्की। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आज ही कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा पार्ट है, क्यूब सा पार्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेस सोल्यूशन, पीएच स्केल। तो ये पीएच का मतलब होता है पीएच, स्मॉल पी कैपिटल एच। पी का मतलब होता है पावर, एक्चुअली एक जर्मन वर्ड से आया है। पी का एक्चुअल जो वर्ड दिया था वो था पोटेंस, जिसका डायरेक्ट अगर तुम ट्रांसलेट करो उसको तो उसका मतलब होता है पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये पीएच स्केल है जिससे हम किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। देखो लिटमस से हम ये कितना स्ट्रांग और कितना वीक हम लोग नहीं पता लगा सकते, वो सिर्फ एसिड है या बेस है वो पता लगा सकते हैं। बट स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है ये पीएच स्केल हमें बताता है। तो ये पीएच स्केल क्या करता है पता है? इट मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस, and according to the concentration of hydroxyl or hydroxide ions, pH scale shows you a proper color on a chart. If you match it, you will exactly know whether it's a strong acid or a weak acid or a strong base or a weak base. ठीक है, सो ये pH scale सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, डिस्कवर नहीं इन्वेंट किया था। तो ये पीएच के अलग अलग वैल्यूज उसने बनाए, एक पूरा स्केल बनाए। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा पीएच स्केल की वैल्यू क्या है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मोल्स पर लीटर और मोलैरिटी और लॉगरिथम से रिलेटेड है। बिल्कुल हमको ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको फिक्र मत करो इसकी, ठीक है। सीधा मैं तुम्हें पीएच स्केल दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गया भाई? यस आ गया। तो ये है तुम्हारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, लोअर इज द पीएच वैल्यू। रिमेंबर दिस, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लोअर द पीएच वैल्यू। मतलब H प्लस आयंस जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और उतनी पीएच की वैल्यू लो। मतलब पीएच अगर 1 रहेगा या 0 रहेगा, आई एम सॉरी, पीएच अगर 0 रहेगा तो मतलब हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100% है। अगर पीएच 7 होगा मतलब वो न्यूट्रल, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों इक्वल है, न्यूट्रल है सोल्यूशन। और अगर पीएच 14 हुआ तो मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं है ज्यादा, उसमें क्या ज्यादा है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, OH माइनस, ये है H प्लस या H3O प्लस। सो दिस इज योर पीएच स्केल। अब यहाँ पे हर एक नंबर जो है पीएच का 0 से लेके 14 तक, ये सबका एक प्रॉपर कलर होता है और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो एक कुछ ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक डाइज का मिक्सचर है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो डाई होती है उससे बनाते हैं हम पीएच पेपर। वो पीएच पेपर को डालते हैं एसिड या बेस में और वो पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें 14 डिफरेंट कलर्स है, पूरा रेनबो जैसा। और वो 14 डिफरेंट कलर्स, ईच कलर इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक नंबर। तो तुम वो नंबर के साथ वो कलर मैच करो और वो नंबर जो भी दिखाएगा, सपोज 5 दिखा रहा है तो वीक एसिड है, सपोज 13 दिखा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ऐसे 7 दिखा रहा है तो न्यूट्रल है। ऐसे करके तुम मैच कर सकते हो। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। रिमेंबर प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। बेसिक सोल्यूशन का पीएच इंक्रीज होता है विथ बेसिक कैरेक्टर 7 to 14,
ठीक है, और एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ एसिडिटी, एसिडिक बिहेवियर। तो एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच है दैट इज बिटवीन बिटवीन 7 to 0, 7 से लेके 0 तक कम होते रहता है। ये देखो अलग अलग सब्सटेंसेज है और उनके पीएच वैल्यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 है और HCl का पीएच 0 है। विनेगर का पीएच 2.4 से 3.4 तक है। टोमेटो जूस 4.4 से 4.4 से 4.0 तक। कॉफ़ी 4.5 से 5.5, कॉफ़ी एसिडिक होती है। यूरिन एसिडिक होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में। सलाइवा भी एसिडिक और न्यूट्रल के रेंज में है। ब्लड अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है। बियर, बियर भी बताया यार, अजीब लोग हैं। 4 to 5, मतलब थोड़ा एसिडिक होता है बियर। ओके, समझ में आया तुम्हें पीएच वैल्यूज? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब ना न्यूमेरिकल्स तुमको नहीं है, टेंशन मत लेना। हाँ, ये इसकी बात कर रहा था मैं। जैसे लिटमस पेपर था तुम्हारा, उसमें ब्लू और रेड दो ही कलर आते थे, इसमें पूरा ऐसा रेनबो आता है, अलग अलग कलर्स है। रेड आया मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक, पर्पल आया मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बहुत सारे ऑर्गेनिक डाइस का मिक्सचर है, और उससे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बनाते हैं। वो पेपर हम लोग पीएच स्केल के साथ यूज करते हैं। कलर्स दिए हुए हैं सारे। However, more precise measurement are made with a pH meter, which reports pH directly. pH meters of different size and accuracy are commercially available these days. These are commonly used in laboratories, factories, and field work to measure pH of different solutions up to 0.001 accuracy. क्या बात है? What does an increase in concentration of hydrogen ions in solution have on the pH of the solution? मतलब अगर H प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे तो pH क्या होगा? pH कम होगा, pH will decrease, pH decreases as। अच्छा, ये तो इसका तो क्वेश्चन ही गायब है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 2-3 गायब हो गए। इजी है, चलो ठीक है। ये तो अच्छा, ये बताओ, विच ऑफ दीज इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस? 1 m, m मतलब ml होगा शायद, कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट ऑफ HCl और 1 यूनिट ऑफ सेम यूनिट ऑफ एसिटिक एसिड। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, दिस विल हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि विच विल हैव हायर पीएच? दिस विल हैव हायर पीएच। व्हाई? जितना हाई पीएच उतना एसिडिक कैरेक्टर कम, जितना लो पीएच उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अच्छा, दो सोल्यूशन है ए और बी, उसका पीएच है 3 और 5। विच ऑफ द टू सोल्यूशंस हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड विच वन इज मोर एसिडिक? तो एक का पीएच 3 और एक का 5 है। सोल्यूशन ए का पीएच 3 है, तो सोल्यूशन ए विल बी मोर एसिडिक and it will have more hydrogen ion concentration because its pH is less. Simple. सही है आंसर। State what does pH of a solution signify? 3 solutions। अच्छा, pH क्या बताता है? pH tells you the concentration of hydrogen ions in a solution, hydrogen or hydroxyl ions। 3 solution ABC has a pH value of 6, 2 and 10. Which of these solution is highly acidic? 2 वाला B, solution B is highly acidic. And which solution will turn red litmus blue? 2 वाला, 2 वाला नहीं 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 नहीं, सॉरी 10 वाला। 10, pH 10 है। C, solution C will turn red litmus blue and solution B will be highly acidic. Yes. हाँ, ये वो पहले उसका आंसर इसका आ गया था। द pH वैल्यू ऑफ 3 एसिडिक सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल मोलार कॉन्सेंट्रेशंस आर। मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन समझो अभी, क्योंकि मोलार कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। pH value of 3 acidic solutions having equal molar concentrations are vinegar, Coca-Cola and beer. Arrange these acids in order of increasing acidic strength. तो सबसे पहले आएगा कोका कोला,
फिर आएगा बियर, फिर आएगा विनेगर। कोका कोला, बियर, विनेगर। हाँ, पहले हो गया। अच्छा, इसका पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में? प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 के पीएच रेंज, नैरो पीएच रेंज में वर्क करती है। तुम जब ब्लड टेस्ट करवाते हो, यू गेट योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, यू चेक द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, उसमें ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, यूरिन का पीएच वैल्यू, वो मेंशन होता ही है। क्योंकि बहुत सारे डिसीजेस डॉक्टर्स डायग्नोस कर सकते हैं बाय जस्ट बाय लुकिंग एट द पीएच ऑफ योर ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट पीएच बाय हैविंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। अच्छा, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम हो गया तो वो एसिड रेन बोलते हैं उसको। अगर एसिड रेन रिवर्स में आ गया तो वो रिवर का पीएच कम कर देगा और बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ मर जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स का पीएच सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पीएच होता है। जनरली हमारे स्टमक में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जितना भी फॉरेन बॉडीज आता है उसको वो अ, उसके उसमें रहने वाले जर्म्स को वो किल करता है। सो बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड है। बट कभी कभी ऐसा होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में कि वो पेन और इरिटेशन या फीलिंग ऑफ बर्निंग प्रोड्यूस करता है, उसको एसिडिटी बोलते हैं। ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड खाते हैं, इनो बेसिकली। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक एंटासिड है, जो पहले भी हमने देखा था। टूथ डीके, तुम्हारे जो टूथ में डीके होता है, क्या बोलते हैं उसको, कैविटीज होती है। कैविटीज कैसे होती है? तो तुम्हारे माउथ का जो पीएच है वो 7 है, क्योंकि सलाइवा न्यूट्रल रखता है माउथ को। लेकिन हम कुछ जब स्वीट या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो माउथ के अंदर बैक्टीरियाज के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज माउथ के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। तो ये जो बैक्टीरिया है, जब ये एक्सक्रीट करते हैं तुम्हारे माउथ के अंदर, जस्ट इमेजिन तुम्हें पता भी नहीं है, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और तुम्हारे माउथ में कोई भी पॉटी कर रहा है। दिस इज सो ग्रोस, बट ये ट्रू है। बैक्टीरियाज दे डिसइंटीग्रेट शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ, इसलिए खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए तुरंत, या फिर माउथ को रिंस करना चाहिए प्रॉपरली। नहीं किया तो वो जो फूड पार्टिकल्स है उसको बैक्टीरिया उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर वो एक्सक्रीट करते हैं तुम्हारे माउथ में। उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो जनरली एसिड होता है, और इसलिए जो माउथ का पीएच है वो गिर जाता है। माउथ का पीएच गिरता है, माउथ एसिडिक हो जाता है, तो टीथ पे पहले सबसे पहले अटैक होता है। तो टीथ का जो एनामल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, बट एसिड में डिजोल्व होता है। तो एसिड में डिजोल्व होने से फिर वो कोरोड होके धीरे धीरे उसमें होल हो जाता है। ठीक है, और कैविटीज बन जाती है। सो इसलिए शुगरी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और खाओगे तो तुरंत ब्रश कर लो, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारे माउथ में कौन क्या करने वाला है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं कुछ, अगर तुम उनके उनके पास जाओगे, उनको छेड़ोगे, तो दे विल ईदर बाइट यू, और दे विल नॉट बाइट बट स्टिंग यू, और you can say the plants will actually uh, it leaves an acid on your skin or something like that, which produces burning sensation. तो अगर तुम विनेगर, आई एम सॉरी, नेटल, नेटल लीफ एक प्लांट होता है जो बेज, नेटल ऑल्सो लीव्स एन एसिड विच कॉजेज बर्निंग, एंड स्टिंग ऑफ येलो वास्प्स कंटेन alkali and they are neutralized by rubbing vinegar. तो मतलब वो भी एसिड्स और बेसिस, कुछ प्लांट्स है वो, प्लांट्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स हमारे ऊपर अटैक करते हैं एसिड्स या बेसिस से, विच इज बेसिकली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड वी फील बर्निंग सेंसेशंस, एंड इसलिए जंगलों में नहीं जाना चाहिए और मधुमक्खियों से दूर रहना चाहिए। ऑल राइट, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। नेटल is a wild herbaceous plant found in jungles. Its leaves have stinging hair which cause painful stings when accidentally touched. Accidentally भी उसको छू लिया तो वो मतलब गया फिर। Have you ever thought why does it cause pain? This is because stinging hair of nettle leaves inject
methanoic acid into the skin and the person of the person and causes burning pain. Nature itself provides remedy of this. One of the traditional remedy for nettle leaf sting is to rub stung area with leaf of dock plant, which often grows besides the nettle in the wild. Now you can guess the nature of the dock plant. The leaves of dock plant must be containing some basic chemicals in them which neutralizes acidic sting of the nettle plant leaves and hence gives relief. So now you know what to look for if you accidentally touch nettle plant during trekking. सॉइल के पीएच के बारे में हमने बात किया कि अलग अलग जो सॉइल होती है उनमें तुम पीएच लेवल चेक कर सकते हो और सम प्लांट्स दे ग्रो इन सम स्पेसिफिक पीएच लेवल. तो राइस को एसिडिक सॉइल चाहिए और जो खुद राइस एक कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोवाइडर है उसका एसिडिक सॉइल चाहिए और सॉइल चाहिए ग्रो होने के लिए. और ऑरेंज को बेसिक सॉइल चाहिए जो खुद एसिडिक फ्रूट है. ठीक है. नेचर इज ऑल्सो रिच इन मेनी सोर्सेज ऑफ एसिड्स. ये सारे नेचर में फाउंड होने वाले एसिड्स हैं. एंड एक्सरसाइज इज ओवर हियर. ठीक है. आई थिंक लंबा एक्सरसाइज कितना है यार, काफ़ी एक्सरसाइज है. 20 क्वेश्चन तो अभी तक हो गए. 28. वाह, 28 क्वेश्चन है. तो अभी मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ तुमको, वीडियो देखो, एक्सरसाइज सॉल्व करो. आई होप ये आज वाला वीडियो अच्छा था, इजी था, काफ़ी इजी था. तो अभी सिर्फ सॉल्ट्स बचा, एसिड्स और बेसिस और पीएच तक हमने ख़त्म किया है. तो ये चैप्टर अभी और एक वीडियो लगेगा, एक या दो वीडियो उसमें ख़त्म हो जाएगा. राइट. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वाई नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय.